ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ರಿಂದ 13 ವಚನವರೆಗೆ. ಆತನು ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಂಡಿನ ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ನಾನು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಶತಾಧಿಪತಿಯು, ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣವಾಗುವುದು. ನಾನು ಸಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇರುವವನು. ನನ್ನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಇಂತಿಂಥದನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದನು. ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ನಾನು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮೂಡಣ ಪಡುವಣ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಂ, ಇಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬ್ ಎಂಬವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡುವರು. ಆದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವರು. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋಣವೂ ಇರುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಶತಾಧಿಪತಿಗೆ, ನೀನು ನಂಬಿದಂತೆ ನಿನಗಾಗಲಿ, ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. ಆಮೆನ್. प्रेज द लॉर्ड. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. सभी को जय मसीह की. आइए हम प्रार्थना के पूर्वक जो है इस आराधना को शुरू करेंगे. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರದಂತೆ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ವ್ಯಾಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೆಲ್ಲನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಂಗ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ವಿಠಲ್ವಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯರಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಶಾರೀರಿಕ ನೋವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಮೆನ್ ಲೇಮೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸಿ ಕರ್ತನೆ, ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ WSS ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ, ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನು, ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಯೌವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, MYF ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ. ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಂತ ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರದಂತೆ ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನೂತನವಾದ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ನಿನ್ನಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಬೇಗನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನೂತನವಾದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ, ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕರ್ತನೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಮಾತಾಡಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು, ನನ್ನ ಸ್ವತಃವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ. ಬಲಪಡಿಸೇಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ, ಚಲುಬಿದ್ದ ಕೈಗಳ ನಡುಗುವ ಮೊಣಕಾಲ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾತ್ಮನಿಂದ. ಬಲಪಡಿಸೇಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ, ಚಲುಬಿದ್ದ ಕೈಗಳ ನಡುಗುವ ಮೊಣಕಾಲ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾತ್ಮನಿಂದ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ನಿನ್ನ
ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ. ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವರಗಳಿಂದ ಈ ದಿನವು ನಡೆಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ. ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವರಗಳಿಂದ ಈ ದಿನವು ನಡೆಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ. ಕರುಣಿಸು ಯೇಸು ಭಾರತ ದೇಶವ, ಸುರಿಸು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ, ಅಗ್ನಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮವ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಲಿ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ. ಕರುಣಿಸು ಯೇಸು ಭಾರತ ದೇಶವ, ಸುರಿಸು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ, ಅಗ್ನಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮವ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಲಿ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ. ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ. ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಿ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ. सिकनेस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। जी हाँ, बीमारी हमारे जीवन में आशीर्वाद को लेकर आती है। सुन के थोड़ा सा अचरज होता है, सुन के थोड़ा सा आश्चर्य करने को जो है मन करता है, लेकिन ये सच्चाई है। जब ये पैसेज हम पढ़ते हैं, कुछ 3 या 4 आशीर्वादों के बारे में, 3 करीबन आशीष के बारे में हमने लास्ट वीक जो है, लास्ट वीडियो में जो है हमने जानने का कोशिश किया। जैसे इस पैसेज में लिखा है, एक सर्वेंट, एक सेवक बीमार होता है तो उसका स्वामी जो रोमियो ऑफिसर है, यानी रोमन सोल्जर है या रोमन ऑफिसर है, बहुत बड़े पोस्ट पर है, वो यीशु मसीह के पास जाकर चंगाई के लिए मांगता है और कहता है, यीशु मसीह कहता है चल मैं जाकर चंगा करता हूँ। वो कहता है आपको मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सामर्थ इतना है कि आप यहीं पर खड़े रहकर जो है बोल सकते हो और उसकी बीमारी चली जाएगी और वो चंगा हो जाएगा। और ये जो है हमने इन बातों पर मनन किया। कुछ 3 आशीर्वादों को हमने इस पैसेज से जानने का कोशिश किया कि सिकनेस
ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ लव, यानी कि एक प्यार, एक केयर, एक कंसर्न को जो है यहां पर वो ऑफिसर ने दर्शाया उस सेवक के ऊपर। जो बीमारी अगर ना होती तो शायद ये प्रेम दर्शाने का अवसर नहीं मिलता। दूसरी बात हमने देखा कि सिकनेस ब्रिंग्स अ ब्लेसिंग ऑफ इवेंजलिज्म, यानी किसी को यीशु मसीह के पास लेकर जाता है आपकी बीमारी। वाह, ये सच में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। जो हमारे जीवन में हमारी बीमारी हो या हमारी परेशानी या कोई भी तकलीफ अगर हम लोग पड़े हुए हैं, या हम बीमार हैं या हमारे कोई रिश्तेदार अगर बीमार है, तो ये बीमारी जो है किसी को यीशु मसीह के पास लेकर जाती है। वो प्रार्थना करता है या वो बाइबल को पढ़ता है या खोजने की या सुनता है एटलीस्ट सच में, और आपके जीवन में भी जो है यीशु मसीह के जो है पास लेकर आता है। और तीसरा हमने देखा सिकनेस हियर रिवील्ड द अथॉरिटी ऑफ जीसस, यानी यीशु मसीह का एक अमेजिंग अथॉरिटी, एक बहुत ही जबरदस्त उसका जो सामर्थ्य है या अधिकार को दर्शाया, क्योंकि यहीं पर खड़े रहकर उसको हिलने की जरूरत नहीं है, यहां पर खड़े रहकर वो सेवक चंगा हो सकता है। ये विश्वास जो है उस रोमन ऑफिसर ने वहां पर दर्शाया था। और सच में ये सुनकर ये यीशु मसीह ने उसके तारीफ का उसके विश्वास का जो है तारीफ किया सारे शिष्यों के सामने, लोगों के सामने, कि ऐसा विश्वास जो है मैंने इज़राइल में कहीं नहीं देखा जो ये ऑफिसर दिखा रहा है। वाह, आगे जो है और 4 ब्लेसिंग्स जो है ये बीमारी इस पैसेज में लेकर आता है, जो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो 3 तो हमने देखा है, आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चौथा जो है सिकनेस ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ ओपनिंग द डोर टू जीसस। जी हाँ, आज जो है हम लोग 11 से लेके 13 वचन तक विशेष करके इसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले, इन वचनों के ऊपर। मैं सोच रहा था जब ये वचन को पढ़ा, यीशु मसीह कहता है कुछ यहाँ पर बीमार है, चंगाई चाहिए, वो चंगाई के लिए मांग रहा है, और यीशु मसीह वहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सही बात है कि बहुत सारे लोग अब्राहम के साथ जो है भोजन को करेंगे, परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे, और बहुत सारे लोग जो होने चाहिए वो लोगों को जो है बाहर फेंका जाएगा, अपने दांत पीसते रह जाएंगे, वो नरक की आग में झोंके जाएंगे, और उसके बाद वो चंगाई मिल गया। मैं सोचा कि ये बात यीशु मसीह यहां पर क्यों बताने की कोशिश करता है। अनलेस समबडी इज सिक, अगर कोई जब तक बीमार नहीं पड़ता, परेशानी नहीं आती, तकलीफ नहीं आती, तो शायद इसको लाइव समझना बहुत मुश्किल है। तो आज अगर आपके जीवन में कोई भी बीमारी आई है, कोई तकलीफ आई है, या आपके रिश्तेदार कोई बीमार है, कोई दोस्त बीमार है, तो आप ये वचन को बहुत अच्छे रीति से समझोगे और सच में नए आशीष का एक्सपीरियंस आप अपने जीवन में कर पाओगे। व्हाट इज दैट? सिकनेस ओपन्स द डोर टुवर्ड्स जीसस, यानी यीशु मसीह का जो दरवाजा जो है ये बीमारी खोल देता है, जो हमें यीशु मसीह के पास लेकर जाती है। दिस इज अ लिटरल इवेंजलिज्म वंस अगेन। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, यहाँ पर अगर हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि ये जो रोमन ऑफिसर यीशु मसीह के पास गया, उसको यीशु मसीह के बारे में पता चला, वो यीशु मसीह से बात किया, लेकिन 11वें वचन में जो है यहाँ पर लिखा है मेनी विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स जीसस। बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे कौन है मालूम है? मेनी नॉन बिलीवर्स, जो अविश्वासी लोग हैं, मेनी नॉन बिलीवर, जो अविश्वासी लोगों के लिए यहाँ पर ये बीमारी ने दरवाजा खोल दिया है, ये यीशु मसीह बता रहा है। और जो है अविश्वासी लोग बहुत ज्यादा अपने विश्वास को मसीह में दर्शाएंगे, ये यीशु मसीह कहता है। और बहुत सारे अविश्वासी लोग जो है परमेश्वर के राज्य में स्वागत को पाएंगे। वाओ, दिस इज ओपनिंग, यानी ये एक इन्विटेशन है, या एक फाउंडेशन यहाँ पर यीशु मसीह कहने की कोशिश करता है जो ये बीमारी ने लेकर आया है। और सच में अगर अविश्वासी लोग हमसे ज्यादा विश्वास को दर्शाएंगे, तो सच में हमसे ज्यादा आशीष अविश्वासी लोग पाएंगे। ये वचन लिटरली ये कहने की कोशिश करता है, हमारा स्थान जो हमें मिलना चाहिए उसके बजाय उनको मिलेगा। ये जो है एक दरवाजा खुल गया है यहाँ पर। अगर जस्ट इमेजिन करो, अगर हम अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं गए, तो ये दरवाजा हमारे लिए भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्रिश्चियन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप नॉन क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह के पास जाना चाहते तो दरवाजा जो है हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ खोल देता है, ताकि हम यीशु मसीह के पास जा सके।
अगर अविश्वासी लोगों को जो है इतना यीशु मसीह स्वागत कर सकता है, तो आप विश्वासी होने के बावजूद अगर दूर है, तो आज जो है ये दरवाजा खुला है कि हम यीशु मसीह के पास जा सके, और यीशु मसीह स्वागत करता है अपने राज्य में। और पांचवा बात जो है, सिकनेस ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ वार्निंग। जैसे स्वागत करता है वैसे एक चेतावनी भी जो है यहां पर यीशु मसीह देना चाहता है। जैसे वचन को हमने पढ़ा है, वचन को हमने जाना है, वो कहता है कि बहुत सारे लोग जो है, नए लोग एंट्री करेंगे परमेश्वर के राज्य में, लेकिन जो रहना चाहिए, जो यहूदी लोग होना चाहिए, यानी आज की तारीख में हम समझेंगे जो क्रिश्चियन लोग वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहिए, उनको बाहर फेंका जाएगा। वो नरक की आग में तड़पेंगे, बाहर फेंका जाएगा। दे विल बी थ्रोन इनटू द हेल वेयर दे विल बी gnashing their teeth, यानी वो जहां पर दांत पीसते रह जाएंगे, हताश हार कर सब उनका खत्म हो जाएगा। हमारे लिए एक वार्निंग जो है ये बीमारी लेकर आता है, यीशु मसीह ये दर्शाता है यहां पर। आज जो है एक बीमारी जो है या कोई तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में, ये वार्निंग को लेकर आना जरूरी है। और ये वार्निंग को मैंने ब्लेसिंग कहा है क्योंकि यहां पर फैसला यीशु मसीह नहीं दे रहा है, यहां पर बता रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, इसलिए अभी सतर्क हो जाओ, इसलिए अभी समझो इस बात को। अगर वो सिकनेस जो है यीशु मसीह के पास लेकर जाता है, उसके अधिकार को दर्शाता है। एट द सेम टाइम यीशु मसीह यहां पर उनके शिष्यों को, जो लोग वहां पर एकत्रित है, और आज हम सभी को एक चेतावनी के रूप में दे रहा है कि हमारा विश्वास सही होना जरूरी है, नहीं तो हम भी नरक में फेंके जाएंगे, स्वर्ग के राज्य से हम भी बाहर हो जाएंगे। ऐसा यीशु मसीह जो है हमें बताने की कोशिश करता है। सो दिस इज अ वार्निंग, एंड वार्निंग फ्रॉम जीसस इज अ ब्लेसिंग। ये चेतावनी है, लेकिन यीशु मसीह की चेतावनी एक आशीर्वाद है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। भले हम लोग का विश्वास टूट गया है, हमारा विश्वास कम हो गया है, हमने गलत काम किए हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वार्निंग देकर, चेतावनी देकर आपको बुलाना चाहता है वापस से कि ऐसा होगा और मैं नहीं चाहता कि आप नरक में जाए। ये यीशु मसीह यहाँ पर कहने की कोशिश करता है, यहाँ पर दर्शाता है यीशु मसीह कि वो कितना प्यार हम सबसे करता है और चाहता है कि हम भी अपने विश्वास को सही करें, यीशु मसीह के ऊपर सही रीति से लाए, अपने तरीकों को सही करें और जो है नरक से बच जाए और परमेश्वर के राज्य में हम जाकर अपने आप को देखें। सो सिकनेस इज अ ब्लेसिंग टू सी आवरसेल्फ। अपने आप को अच्छे स्थान पर देखना, ये एक आशीर्वाद है जो एक बीमारी लेकर आता है। एक बीमारी के तरीके से, एक तकलीफ के माध्यम से जो है हम अपनी गलतियों को देखना अति आवश्यक है। हमारे गलत गंदी बातों को देखना आवश्यक है। मैंने क्या गलती किया है, क्या पाप किया है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, देर होने से पहले, बिफोर इट्स टू लेट। हमें अपने रास्ते को बदलकर परमेश्वर के रास्ते पर आना जरूरी है। ये यीशु मसीह यहां पर दर्शाता है। तो इट्स रियली अ ब्लेसिंग अगर यीशु मसीह वार्निंग दे रहा है, सीधा खत्म नहीं कर रहा है। ये प्यार को दर्शाता है यीशु मसीह का, और यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए आपको वो वापस बुलाना चाहता है। अगर कोई भी गंदगी, कोई भी गलती हम कर रहे हैं या कर रहे थे, तो आज का तकलीफ आपके जीवन में, आज की बीमारी आपके जीवन में इसलिए है कि हम उस बात का एहसास करें और उस गलत बातों को छोड़कर अपने विश्वास को सिद्ध करें, अपने विश्वास को सही करें देर होने से पहले। और यीशु मसीह यही चाहता है, इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर ये बात को हमें सिखाने की कोशिश करता है। और चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और छठा बात यानी 6th पॉइंट हम लोग देखते हैं, सिकनेस ब्रिंग्स अ ब्लेसिंग ऑफ कॉलिंग। ये एक बुलाहट का आशीर्वाद है। क्या कॉलिंग है? टू बी फेथफुल टिल द एंड, यानी हमें विश्वास योग्य होना चाहिए। कभी तक, आज तक, कल तक, परसों तक नहीं, अंत तक
जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता, जब तक जजमेंट डे नहीं आता, जब तक ये दुनिया का नाश नहीं होता, तब तक हमें विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। अगर आज हम विश्वास योग्य, वेरी गुड, मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन हो सकता है कल हम गलती में गिरे, हो सकता है हम कल पाप में गिरे, लेकिन यीशु मसीह यहां पर एक वार्निंग के रूप में ये वचन से दर्शाना चाहता है कि अंतिम समय तक, अंत तक हमें विश्वास योग्य बन के रहना है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तकलीफ मेरे जीवन में है, क्या दर्द मेरे जीवन में है, लेकिन फिर भी मैं मसीह के लिए विश्वास योग्य होऊंगा, क्योंकि विश्वास योग्य रहने के लिए एक नया तोहफा परमेश्वर हमेशा जो है अपने वचनों में प्रॉमिस किया है, एक अनमोल ब्लेसिंग हमें दिया है, दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य उन्हीं के लिए है जो अंत तक विश्वास योग्य होगा। और बीमारी में जो है हम अपने आप को जो है टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि हमारा विश्वास किधर डगमगा रहा है, कहां पर गिर रहा है। हम फिर से अपने आप को जो है खड़ा कर सकते हैं यीशु मसीह के विश्वास में। इसलिए ये सिकनेस या ये बीमारी, ये तकलीफ जो है हमारे जीवन में एक आशीर्वाद को लेकर आता है, नए बुलाहट के साथ, कि हमें एक विश्वास योग्य अंतिम समय तक होना जरूरी है। और ये पैसेज जो है यहाँ पर एक बीमारी के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब सिकनेस डिस्क्राइब इन दिस पैसेज। जो बीमारी इस वचनों में दिखाया गया है वो एक बेस बन गया है, यानी एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके जरिए यीशु मसीह जो है एक नए बुलाहट को देता है सभी विश्वासियों के लिए कि विश्वास योग्य रहो मेरे बच्चों, अंत के समय तक विश्वास योग्य रहना है। ये यीशु मसीह का बुलाहट है जो हमारे जीवन में आशीर्वाद है, जो उस बीमारी ने लेकर आया था। आज आपकी बीमारी शायद आपके जीवन में ये बुलाहट को लेकर आया है। इसलिए मैं कह रहा था सिकनेस इज अ ब्लेसिंग टू नो द कॉल ऑफ जीसस। ये बीमारी, ये तकलीफ हमारे जीवन में नया आशीर्वाद है कि हम यीशु मसीह के बुलाहट को, यीशु मसीह के पवित्रता को, यीशु मसीह की आवाज को हम लोग सुने, हमारे जीवन में नए पश्चाताप को करें और सही दिशा में हम लोग बढ़े, और सही दिशा में बढ़कर अंतिम समय तक हम अपने विश्वास को थाम के रखें, हम अपने विश्वास से हिले नहीं। ये यीशु मसीह जो है उस बीमारी के जरिए वहां पर लोगों को समझाता है। आज हमारे लिए यीशु मसीह ये आशीर्वाद देता है, ये नया बुलाहट हमको देता है। अंत में जो है हम लोग देखते हैं एक 7th पॉइंट जो है हम लोग देखते हैं, सिकनेस ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ हीलिंग। सिकनेस ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ हीलिंग। कुछ जमता नहीं है, बीमारी चंगाई के आशीर्वाद को लेकर था। जी हाँ, जब तक हम बीमार नहीं होंगे तो हमें चंगाई कैसे पता चलेगा? तो आपकी बीमारी आई है परमेश्वर का सामर्थ्य आपको दिखाने के लिए। आपका तकलीफ आया है परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में, बोलते ना, एक लाइट में आने के लिए, एक दर्शाने के लिए, सामर्थ्य को बताने के लिए जो है हमारी बीमारी हमारे जीवन में आया। यस, अनलेस यू एक्सपीरियंस द सिकनेस, जब तक हम लोग बीमारी, तकलीफ को जो है एक्सपीरियंस, एहसास नहीं करते हैं, तब तक जो है वो ब्लेसिंग, चंगाई का वो सामर्थ्य को हम कैसे एहसास कर सकते हैं? वो यीशु मसीह के सामर्थ्य को एहसास नहीं कर सकते हैं। आज का बीमारी अगर आपके जीवन में आया है तो उसकी चंगाई, उसका सामर्थ्य को जो है आप एहसास करने के लिए आया है। तो यहाँ एक कोट मुझे याद आता है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन, यानी कुछ हम लोग हासिल नहीं कर सकते जब तक दर्द से हम लोग गुजरते नहीं हैं। हमारे यूथ की एक बच्ची है, हम सभी लोग जानते हैं, रोमा हमेशा जो है एक टॉपिक मुझे कहती है कि नो स्टोरी नो ग्लोरी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर, जहां पर कोई कहानी नहीं है वहां पर परमेश्वर की महिमा नहीं है। कहानी का अर्थ क्या है? यानी दर्द से भरा हमारे जीवन में जब तक बात नहीं होती है, जब तक हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आती है, तो परमेश्वर की महिमा को हम लोग कैसे देखेंगे? अय्यूब की कहानी में ये बात को बहुत अच्छा दर्शाया गया है। सच में अय्यूब के जीवन से हम लोग देखते हैं, उसके जीवन में वो तकलीफ, वो बीमारी, वो छुड़ाव, वो अलगाव, कितने तकलीफ उसने देखे। क्यों आया? क्योंकि अंत में परमेश्वर का महिमा बहुतायत से उसके जीवन में देख पाया है वो। आज अगर आप बीमार हैं, अगर आज आपको तकलीफ है, आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, तो ये वचन आपको दर्शाना चाहता है, बताना चाहता है कि आपकी बीमारी परमेश्वर की नई महिमा के लिए है।
आपकी कहानी परमेश्वर की महिमा को दिखाएगा। योर स्टोरी विल ब्रिंग गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा को आप देख सकते हैं। यस, टू सी द वर्क ऑफ जीसस, यानी परमेश्वर के काम को देखने, उसकी महिमा को देखने के लिए हमें कई बार जो है तकलीफों से गुजरना पड़ता है। और ये तकलीफ जैसे कि बीमारी, तकलीफ जैसे कि तंगी, तकलीफ जैसे कि बहुत सारे परेशानियों को घर में जो हम लोग झेल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए आपके जीवन में हो सकता है। सो इन दिस पैसेज, इस वचनों में हम देखते हैं कि वो बीमार व्यक्ति जो है हीलिंग को एक्सपीरियंस किया। और हीलिंग को मैं और एक नया नाम देना चाहता हूं, सिकनेस ब्रिंग्स द ब्लेसिंग ऑफ टेस्टिमनी। एक नई गवाही को आपके जीवन में लेकर आएगा आपकी बीमारी। ये विश्वास हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बीमारी इस पैसेज में, वचनों में बहुत सारे चीज़ों को उजागर कर देता है। आपकी बीमारी भी आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाने के लिए, एक नई गवाही देने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ को देखने के लिए, अनेक चीजें आपके जीवन में बताने के लिए आई है। सिर्फ आपके ही नहीं, आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदारों के जीवन में ये दर्शाता है। सो टुडे इफ यू आर सिक, अगर आज आप बीमार है, अगर आपका कोई चहीता कोई बीमार है, कोई फैमिली आपका बीमार है, सो प्लीज टेक करेज, हिम्मत बांधिए, धाड़स बांधिए, धीरज रखिए। टेक स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस वर्ड्स, इन वचनों से जो है उस सामर्थ को पाइए, क्योंकि ये बाइबल का वचन आपके जीवन में नए सामर्थ को जोड़ता है। इस वचन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या, कौन सी बात जो है मेरे बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से जो है ये रिवील होता है, और कौन सा ब्लेसिंग मेरे जीवन में लेकर आता है। क्योंकि सच में आपकी बीमारी आपके जीवन में नए ब्लेसिंग को लेकर आने के लिए आई है। अगर ये वचन आपको समझ में आता है तो आप हिम्मत रखिए, सच में परमेश्वर आपके जीवन में नए सामर्थ को आप देगा। सच में वो जो है आपके जीवन में नए कार्य को, नए आशीर्वादों से भरने वाला है, अगर हम विश्वास करें तो। लेट मी कंक्लूड फॉर यू। ये अंतिम समय में जो है मैं सारे ब्लेसिंग्स को छोटा सा रीत में जो है फिर एक बार जो है आपके सामने लेकर आना चाहूँगा। अगर कहाँ पर आप क्लिक होते हैं, परमेश्वर का आप धन्यवाद कीजिएगा। यू कैन सी दोज ब्लेसिंग इन योर सिकनेस। ये आशीर्वादों को आपकी बीमारी में, आपकी तकलीफ में आप देख सकते हैं। क्या ये बाइबल का वचन लेकर आता है? वही जो ब्लेसिंग्स आपका बीमारी भी लेकर आता है। वो बंदा बीमार था और ये बातें परमेश्वर ने आशीष के रूप में देखा। परमेश्वर की हर एक बात एक आशीष है, इसलिए आज आपकी बीमारी भी नए आशीष को लेकर आता है। फर्स्ट क्या लेकर आया? ब्लेसिंग ऑफ लव। जब तक वो बीमार नहीं पड़ता तो वो स्वामी अपना केयर, अपना कंसर्न, वो चिंता जो है दर्शा नहीं पाता, प्रेम को दर्शाया है। आपके भी जीवन में बहुत सारे लोग प्रेम को दर्शाए होंगे। सेकेंड थिंग इज ब्लेसिंग ऑफ लीडिंग समवन टू जीसस। किसी को यीशु मसीह के पास लेकर गया है, उसकी बीमारी आपकी बीमारी भी लेकर जाता है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना किए हैं, आप खुद प्रार्थना किए, आप खुद को शायद यीशु मसीह के पास लेकर आने के लिए ये बीमारी आपके जीवन में। थर्ड वॉज ब्लेसिंग of revealing great authority of Jesus, amazing authority, सामर्थ्य पूर्वक अधिकार को दर्शाने के लिए वो बीमारी उस वचन में लिखा गया था। आपके जीवन से भी यीशु मसीह का अधिकार लोग देख सकते हैं, शायद इसलिए आपके जीवन में वो बीमारी है। चौथा बात है ब्लेसिंग ऑफ ओपनिंग डोर टुवर्ड्स जीसस फॉर ऑल, यानी कि ये बीमारी यीशु मसीह जो है एक प्लेटफॉर्म के रीति से लेता है और इस बीमारी के जरिए सबके सामने उजागर करता है कि परमेश्वर का राज्य सभी के लिए खुला है। नॉन बिलीवर्स, नॉन क्रिश्चियन जो अविश्वासी है उनके लिए भी खुला है। अगर वो विश्वास के साथ आएंगे तो सच में सारे लोग यीशु मसीह के, परमेश्वर के राज्य में जो है जा सकते हैं। अगर आज तक हम भी कोई गलत काम को किए हैं या हम नहीं जा पा रहे तो ये दरवाजा हमारे लिए भी है। ये बीमारी ने वो दरवाजा खोला है, आपकी बीमारी ने आपके लिए दरवाजा खोला है। पांचवा बात हम लोग देखते हैं ब्लेसिंग ऑफ वार्निंग टू रिपेंट। एक चेतावनी है आपकी गलतियों से पश्चाताप करने। आज तक अगर अब मेरा विश्वास सही रीति से नहीं चल रहा था तो आज आपकी बीमारी को आपको सिखाने दीजिए कि मैं क्या सही करूं, कैसा मेरा विश्वास गलत हो रहा था, मैं गलत कामों में था, मैं उसको सही रीति से करूं। दिस इज अ ब्लेसिंग, ये नया आशीर्वाद है आपके जीवन में जो यीशु मसीह चेतावनी के रूप में लेकर आता है। सिक्स्थ इज ब्लेसिंग ऑफ कॉलिंग टू बी अ फेथफुल टिल द एंड।
हो सकता है आपने पश्चाताप किया, आपने सारे गलतियों को मान लिया और परमेश्वर से माफी भी मांगा, लेकिन परमेश्वर का एक नई बुलाहट ये बीमारी लेकर आता है। जो ये पैसेज दर्शाता है, आपका भी बीमारी, आपका तकलीफ भी दर्शाता है कि सच में हमें विश्वास योग्य, आज कल परसों तक नहीं, अंतिम समय तक हमें विश्वास योग्य रहना है, वरना हमें परमेश्वर के राज्य से बाहर फेंका जाएगा, हमें नरक की आग में डाला जाएगा, जहां पर हम दांत पीसते रह जाएंगे। और ये दशा यीशु मसीह बिल्कुल नहीं चाहता है। इसलिए यीशु मसीह एक नई बुलाहट को देता है। उसकी आवाज को सुनिए और नए आशीर्वाद को आपके जीवन में आप पाइए। और अंत में हम देखते हैं ब्लेसिंग ऑफ हीलिंग एंड टेस्टिमनी, चंगाई और नई गवाही का आशीर्वाद। ये बीमारी आपके जीवन में, उसके जीवन में लेकर आया था, आज आपके जीवन में भी लेकर आया है। हालेलुया। सच में अगर इस बात पर विश्वास है तो आप जो है धाड़स बांधिए। सच में परमेश्वर जो है सिर्फ उसके जीवन में कार्य नहीं, आज आपके जीवन में भी वो कार्य करना चाहता है। और आज सिर्फ आप ही के नहीं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार के जीवन में भी ये सारे ब्लेसिंग्स को सिर्फ आपको ही देखकर नहीं, आपके सारे आसपास के लोगों के जीवन में भी जो है इन ब्लेसिंग्स को जो है आपकी बीमारी लेकर आता है। इसलिए जो है परमेश्वर के वचनों में हम बने रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, बिकॉज योर सिकनेस इज नॉट टू ब्रेक यू बट टू ब्रिंग ब्लेसिंग टू यू एंड मेनी। यानी कि आपका बीमारी आपको तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं आया है, आपका तकलीफ आपको खत्म करने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपके जीवन में नए आशीर्वादों को लाने आया है, नई बुलाहटों को देने आया है। सिर्फ आप ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को। सो सिकनेस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। आपका तकलीफ, बीमारी नए आशीर्वादों को लेकर आता है। और ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर सारी बातों में महिमा पाए और आप हमेशा विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर में नई हिम्मत से, नए विश्वास से जो है परमेश्वर के वचनों पर आप रह पाए। ऐसा परमेश्वर आप सभी पर अनुग्रह करे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी चीजों का स्वामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राज से समर्थ का करता है उपयोग अपने सिंहासन से, करता है शासन हर चीज पर, दिखाता है राह हम सबको धरती पर। आओ उसके रूबरू पाए ज्ञान निरंतर, सब चीजें और पदार्थ, इंसान सब बातें अनुमति परमेश्वर के सिंहासन से। शिकायती दिल ना रखना, वो कृपा ना बरसाएगा तुम पर वरना। आता है जब कोई रोग तो होते हैं उसके पीछे यकीनन नेक इरादे उसकी। तन को तकलीफों तो भी ख्याल शैतान के न रखना, रोग में परमेश्वर की स्तुति करना, ना हार मानना, ना दिल छोटा करना। खोजोगे जब तो परमेश्वर तुम्हें अपनी रोशनी देगा, रोशनी देगा। खोजोगे जब तो परमेश्वर तुम्हें अपनी रोशनी देगा, रोशनी देगा, अपनी रोशनी देगा। याद करो अय्यूब कितना वफादार था,
समर्थ चिकित्सक है परमेश्वर। बीमारी में रहते हो तो बीमार हो तुम, उमंग में रहते हो तो तंदुरुस्त हो तुम। सांस लोगे तुम्हें मरने न देगा परमेश्वर। पुनर्जीवित मसीह की जिंदगी है हमें, मगर सचमुच परमेश्वर में आस्था की कमी है हमें। उसके सब वचनों में मिठास बहुत है। परमेश्वर आस्था पैदा करता हमें। परमेश्वर के वचन दवा है सबके लिए। परमेश्वर के वचन दवा है सबके लिए। लानत है दुष्ट पर, लानत है शैतान पर। परमेश्वर के वचन बचाएंगे हमारे दिल। परमेश्वर के वचन ही है सहारा हमारा। हर बुरी चीज को भगाते हैं वचन, हर चीज को सुकून देते हैं वचन। आस्था एक कुंदे के पुल की तरह है, कायर उसके पार जा नहीं सकता। वो मगर कर सकते हैं इस पुल को पार, जिनमें समर्पण होता है। शैतान बनाता है बेवकूफ बुज़दिल ख्यालों से। शैतान आजमाता है हर तरीके, वो हमें अपने बुरे ख्याल बेचता है। अक्सर दुआ करो परमेश्वर की रोशनी के लिए। हमारे भीतर जो जहर है वो मिटाए उसको। उसके करीब आओ, उसे करने दो हम पर शासन। उसके करीब आओ, उसे करने दो हम पर शासन। हम सभी लोग जो है अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम लोग अंतिम प्रार्थना हम लोग करेंगे और साथ ही साथ इस ऑफरिंग के लिए अगर इस हफ्ते कोई अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी मना रहा है तो अपने स्थानों पर अगर खड़े रहेंगे तो विशेष आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ। ರಾಜದಿ ರಾಜನೇ, ದೇವದಿ ದೇವನೇ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಘನ ಮಾನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಆಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ। ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ನೂತನವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ 30, 60, 100ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಕಳೆದ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನೀನು ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾದ ಆನಂದಗಳು, ಸಂತೋಷಗಳು ತರುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವೆನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್.